Hello my dear students, welcome to all of you on my YouTube channel. Myself Ravi Bhushan Dwivedi. Dear students, we are just going to start a new chapter 1 from your science textbook, that is from biology section. Dear students, chapter 1, the fundamental unit of life, cell. Dear students, as you know that you have to study separately 3 sections including in your science textbook, that is physics, chemistry and biology. So dear students, we have selected one chapter 1 from your science textbook, class 9th, that is fundamental unit of life, cell. Dear students, as you are looking here, the fundamental unit of life, that is cell. So therefore we have to concentrate on cell and we have to study about the cell. So dear students, first of all know what is the cell. So cell is the, if we want to know the cell in the form of Latin words, तो द सेल का जो लैटिन वर्ड में अर्थ होता है उसका अर्थ होता है मतलब छोटा सा रूम, स्मॉल रूम, ठीक है. डियर स्टूडेंट्स, as we compare between the science, matter and in living beings, so we find many similarities and dissimilarities between them. So dear students, as you know that matter we have described in the chapter 1 in my previous video, that is chemistry, matter in our surroundings. As you know that matter is made up of small particles which is known as the atom. So dear students, atom is the smallest part of your atom. It is identical means atom जो मैटर होता है वो एटम से बना होता है. तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस. तो डियर स्टूडेंट्स, इन द सेम वे इफ यू वांट टू नो इन लिविंग बींग्स, तो व्हाट मे बी द एग्जैक्ट द सेम थिंग्स, स्मॉलेस्ट यूनिट. तो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट मीन्स होता है यूनिट मतलब वन, इकाई, ठीक है. यूनिट मीन्स होता है वन, ठीक है. तो यूनिट मीन्स वन. तो हाउ कैन यू डिस्क्राइब द सेल? तो हाउ कैन यू एलेबरेट द सेल? हु ऑब्जर्व द सेल फर्स्ट ऑफ ऑल? तो डिस्कवरी ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक. फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड द सेल in 1665 by using primitive microscope discovered by him, because cell is the finest, very smallest microscopic things which can be seen only microscope. So dear students, ये मतलब इतना छोटा होता है कि इसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है. तो रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइज टू फाइंड आउट द सेल बाय यूजिंग कॉर्क. इट इज अ बार्क ऑफ ट्रीज, ठीक है. कॉर्क मतलब जैसे पेड़ को नीचे से, पेड़ को जब हम लोग किसी भी ट्री को काटते हैं तो उसके अंदर जो वो निकलता है बार्क, तो बार्क ऑफ ट्रीज में ऑब्जर्व किया तो उनको कुछ ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई दिए. These types of structures can be seen there. Identical types of structures can be seen there, and Robert Hooke named it as a cell. तो dear students, cell का मतलब होता है small room, ठीक है, small room. तो जो रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था, रॉबर्ट हुक ने देखा कि जैसे हनी कॉम, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, मधुमक्खी का जो हनी कॉम, जो मधुमक्खी का बनाती है ना बीज, तो उन बीज में जो ऐसे टाइप के जो ये छोटे छोटे होल ये जो दिखते हैं, इसी को रॉबर्ट हुक ने नेम्ड किया सेल. तो सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, बिकॉज आवर होल बॉडी इज मेड अप ऑफ अ सेल. तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, body has been described into two, that is unicellular and multicellular. So unicellular means the body is made up of only single cell, while in multicellular body is made up of many types of cells. But the function of cells, different kinds of functions, particular function perform different types of function. So dear students, let us discuss, elaborate the cell. What is the cell? The cell is the basic structural and functional unit of living organism. यानी हम कह सकते हैं कि जो सेल है is the basic structural and functional unit of लिविंग ऑर्गेनिज्म,
किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल भी है एंड फंक्शनल यूनिट भी है। फंक्शनल यूनिट कैसे कह सकते हैं? जैसे स्टूडेंट्स हम कंपेयर करें कि जैसे कोई भी बड़ा सा सब्सटेंस लें तो उसमें से ढूंढें कि सबसे छोटा सा पार्ट क्या है, तो जवाब आएगा एटम। तो बिकॉज एटम्स किसी आइडेंटिकल चीज़ से वो सब्सटेंस बना होगा, सेम टाइप्स, आइडेंटिकल मीन्स सेम टाइप, तो उस जवाब आता है कि वो एटम से बना होता है। तो इन द सेम वे इफ वी डिस्कस इन द लिविंग बीइंग्स मीन्स लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स में अगर हम देखें कुछ ऐसा चीज़ जैसे ये ट्रीज़ है, ठीक है, तो ट्रीज़ में भी आइडेंटिकल टाइप्स स्ट्रक्चर से वो बना होता है, आइडेंटिकल थिंग से। और स्मॉलेस्ट यूनिट इसका आ जाती है, दैट इज सेल। दिस इज अ सेल। तो ये जो पूरा होल है स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ बाय सेल एंड ईच सेल परफॉर्म द फंक्शन। तो क्या फंक्शन होते हैं किसी भी बॉडी का? तो द फंक्शन, बेसिक फंक्शन कौन कौन से हैं? दीज फंक्शंस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल। कौन कौन से हैं वो फंक्शन? ऑल सेल्स वेदर दे एग्जिस्ट एज वन सेल्ड होगा तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ए पार्ट ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सब क्या करेंगे? कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस सच एज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? एज यू नो दैट टेकिंग फूड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइज इट फूड प्रॉपरली इज नोन एज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग ऑफ इट इज नोन एज द न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, यानी जब हम लोग इनटेक ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं, आवर फूड ब्रेक्स डाउन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, दिस इज नोन एज रेस्पिरेशन। एंड फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? लेट अस रिकॉल रिप्रोडक्शन मीन्स होता है प्रोड्यूसिंग ऑफ इट्स ओन काइंड्स ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स इज नोन एज द रिप्रोडक्शन मतलब होता है कि अपने ही टाइप की स्पीसीज को जनरेट करना ही क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। तो वी कैन सी दैट ऑल सेल्स, सभी सेल्स ये बेसिक फंक्शन को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। तो दीज फंक्शंस आर एसेंशियल, और ये जरूरी भी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल। और डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में बाय यूजिंग द बार्क ऑफ ट्री, कॉर्क बार्क ऑफ ट्री, बिकॉज कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री। जैसे पेड़ को जब काटते हैं नीचे से छाले टाइप का निकलता है ट्रेसेस, उसको हम लोग बार्क ऑफ बार्क कहते हैं। तो बार्क उससे उन्होंने ऑब्जर्व किया, माइक्रोस्कोप से देखा होगा, तो उनको आइडेंटिकल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर मिला जिसे कहा जाता है सेल। और लैटिन में सेल का नाम मतलब होता है स्मॉल रूम। तो डियर स्टूडेंट्स, एज वी कंपेयर, इफ आई आस्क द क्वेश्चंस, if you look a building nearby your surroundings, then what types of imagination, if how can you guess that building is made up of which things? ये पूरी बिल्डिंग किस चीज़ से बनी है? उसका सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो जवाब आएगा ब्रिक्स मतलब ईंटें, छोटा सा ईंटा। जैसे ईंटा होता है छोटे छोटे जुड़ करके एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का निर्माण करता है, उसी प्रकार बहुत सारे सेल्स आपस में मिल करके एक पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, और वो बॉडी स्ट्रक्चर गेन करती है, और ईच सेल परफॉर्म्स सम सर्टेन टाइप्स ऑफ फंक्शन एसोसिएटेड विद दैट बॉडी। देयरफॉर सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। डियर स्टूडेंट्स, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि सेल क्या होता है, सेल के ऑपरेशन क्या होते हैं। नाउ लेट अस मूव दैट हाउ कैन यू इमेजिन दैट सेल कैसे आपको ऑब्जर्व होगा। तो सेल ऑब्जर्वेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा अ सेल। इफ यू वांट टू ड्रा अ सेल, लेट अस सपोज दैट दिस इज द सेल। तो सेल में सबसे पहले जो होगा, ये आपका बाहर का जो सरफेस है, दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको सेल
सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन आल्सो, ठीक है। इट इज आउटर कवरिंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनल्स। इसके अंदर जो भरा होगा ये फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, जेली लाइक स्ट्रक्चर्स, विच इज नोन एज द साइटोप्लाज्म, जिसको कहा जाएगा साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म होगा। इसके इनसाइड मिडिल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस इज देयर, बीच में इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि ये तो बेसिक है, दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ द सेल। सेल में साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द सेल, and nucleus is the part of the, we can say that nucleus is the brain of the cell। किसी भी बॉडी का ये सबसे बीच में होता है पार्ट, that is known as the nucleus। और न्यूक्लियस इस डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको और बहुत सारे नाम से कहते हैं। ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी है। इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है इसको, बिकॉज द सेल मेम्ब्रेन इनटेक एंड एग्जिस्ट सम सर्टेन टाइप्स ऑफ मिनरल्स मटेरियल्स थ्रू इट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को ही अलाउ करता है एंट्री और एग्जिस्ट करने में। तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी सिलेक्ट कर करके ये इनटेक करता है और ये अपने अंदर कुछ सर्टेन सिलेक्टेड टाइप्स ऑफ मटेरियल को अपने अंदर अलाउ करती है और ये बाहर भी जाने देती है। देयरफॉर वी कैन से दैट it is a selectively permeable membrane। सेल मेम्ब्रेन क्योंकि ये कवर्ड करती है, मेम्ब्रेन जस्ट लाइक पॉलीथिन लाइक स्ट्रक्चर, वेरी थिन लाइक स्ट्रक्चर्स। ये बनी किससे होती है, ये लिपिड से बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, देयर आर सम पार्ट्स ऑफ प्रोटीन आल्सो विच इज मेड अप ऑफ दैट। तो वी कैन से दैट these are the three basic parts of the cell, but there are some certain types of organelles which are present inside the cells, just like mitochondria are already there। mitochondria भी होगी इसमें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, mitochondria is already there। तो mitochondria भी होगा इसमें, mitochondria, as you know that what is the mitochondria, yes students, let us continue। there was some technical problem due to which I have to interrupted the video। dear students, let us again come back। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, यहाँ वैक्यूल भी है, वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सम दिस टाइप्स ऑफ ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड द सेल नोन एज द ऑर्गेनेल्स। इसको ऑर्गेनेल्स कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, इट इज नोन एज द ऑर्गेनेल्स। और यहाँ पे ये आप देख रहे हो कि यहाँ न्यूक्लियस भी है, सेल मेम्ब्रेन है और ये जेली लाइक सब्सटेंस है, दैट इज अ साइटोप्लाज्म। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इसको अभी हमने नाम देखा था कि ये इसको और किस नाम से जाना जाता है, इट इज नोन एज द सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। डियर स्टूडेंट्स, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, कहने का मीन्स ये है कि अगर देर आर टू वर्ड्स विच आर एसोसिएटेड विद दैट while entering and
exits of the some certain types of minerals materials, just like there are two process which are associated with that कि diffusion and osmosis. Diffusion and osmosis process can be performed in associated with the सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ प्रोसेस जो ये होता है डाइफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ये यूनिक प्रॉपर्टी है ऑफ द सेल. जैसे कोई सेल है, सेल के इनसाइड द अगर मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, ठीक है, CO2, और यहाँ पे CO2 कम है एटमॉस्फेयर में, तो ये क्या करता है, the CO2 will move from high atmospheric concentration to lower atmospheric concentration. So because there are some small fine pores which are present inside the cells through which exchange can take place and CO2 can move from internal to external. और in the same way अगर ऐसा प्रोसेस हुआ कि जैसे अगर इसमें diffusions can be seen in case of gaseous state. गैसियस स्टेट में डाइफ्यूजन बहुत फास्ट होता है. क्या होता है डाइफ्यूजन्स कि सेल के अंदर कभी कभी गैसियस का एक्सचेंज होता है, जैसे CO2 है तो CO2 इमिट्स होता है फ्रॉम इनसाइड द सेल थ्रू विच द स्मॉल फाइन पोर्स प्रेजेंट्स इनसाइड द सेल आउटर. ठीक है, तो डाइफ्यूजन सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट किस में होता है, सॉलिड में. यू हैव लर्न दिस कंसेप्ट इन केमिस्ट्री आल्सो एंड देयर इज अ टर्म्स एसोसिएटेड विद दैट इन बायोलॉजी. तो ऑस्मोसिस क्या होता है कि जैसे कभी आपने देखा होगा कि जैसे कोई आलमंड्स है, बादाम और छुहारे को, ठीक है, किशमिश है, इसको आप वाटर में डाल दीजिए. ठीक है, अगर हमने वाटर में उसको डाल दिया, वाटर में अगर उसको हमने वाटर में डाल दिया आलमंड को, ठीक है, आलमंड इज poured inside the वाटर. ठीक है, तो आप आलमंड को डाल दोगे तो कुछ समय बाद आप उसको देखोगे आफ्टर 1 day 24 hours the shape and size of almonds gets क्या हो जाता है, साइज में क्या होगा, बड़ा हो जाता है. बड़ा क्यों हो जाता है, क्योंकि आलमंड इज ड्रायर इनसाइड दैट. तो आलमंड के अंदर जो होगा स्ट्रक्चर्स वो क्या होगा, वो ड्राई होगा. बाहर क्या होगा, यहाँ पे मॉइस्चर देखिए, वाटर लेवल ज़्यादा है तो वाटर हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा, हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वाटर पहुँच जाएगा. तो इसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस. तो वाटर अगर मूव कर रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन, तो उसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, डाइफ्यूजन का एक और एग्जांपल देख सकते हैं. जैसे हम लोग एक कंटेनर ले लें, इसमें वाटर भर दें. ठीक है, देयर इज वन कंटेनर, देयर इज ए कंटेनर, वाटर इज फिल्ड H2O से, इसको हमने वाटर से फिल्ड कर लिया. डियर स्टूडेंट्स, वाटर हमने यहाँ पे फिल्ड किया है. ठीक है, यस, वाटर हमने फिल्ड किया है. इसमें अगर हम थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ इंक, स्मॉल पार्ट ऑफ इंक इसमें हम थोड़ा सा डाल दें. ठीक है, इंक की छोटी सी सीसी से, यहाँ से ऐसे बॉटल से इंक का छोटा सा स्मॉल पॉइंट इसमें अगर हम डाल देंगे, तो ये अगर यहाँ पे जहाँ गिरेगा स्मॉल ट्रेसेस, तो आप कुछ देर बाद देखोगे कि द होल वाटर, द इंटायर पार्ट ऑफ वाटर बिकम्स ब्लू इन कलर. तो वो कलर में क्या हो जाता है, पूरा ब्लू, क्योंकि इंक का कलर क्या होता है, ब्लू, ये ब्लू हो जाता है. ठीक है, तो डिफरेंस ब्लू हो जाता है ना. तो ये ब्लू क्यों हो गया, क्योंकि जहाँ पे इंक गिरा होगा यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे और इंक का कंसंट्रेशन वाटर से क्या होगा, उस रीजन पे जहाँ पे वो गिरा होगा वहाँ हायर होगा. और ऑल पार्ट से अगर कंपेयर करें पूरा होल पार्ट से, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगा, लोअर होगा, यहाँ कंसंट्रेशन लोअर होगा. तो यहाँ से हायर कंसंट्रेशन से
ये पूरा इंक क्या होता है, स्प्रेड होता है, फैलता है, स्प्रेड आउटसाइड। तो इससे क्या होता है कि पूरा वाटर कलरफुल हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं डाइफ्यूजन। ठीक है, तो डाइफ्यूजन मीन्स क्या होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है। तो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स, ये डाइफ्यूजन का भी एक पार्ट होता है। आपने देखा है कि डाइफ्यूजन सबसे ज़्यादा गैस में ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर आफ्टर दैट सॉलिड में। सॉलिड में डाइफ्यूजन बहुत ही स्लो होता है। जैसे आपको कहा जाए डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपका स्कूल का हॉलीडे शुरू होने वाला हो, ठीक है, हॉलीडे, समर हॉलीडे, समर वैकेशन आपका शुरू होने वाला हो, समर हॉलीडे आपका शुरू होने वाला हो, और आप अपने ब्लैक बोर्ड में ये वर्ड लिख देंगे समर हॉलीडे, और उसके बाद अगर स्कूल की छुट्टी हो जाएगी और वन मंथ, 1 महीने के लिए अगर वहाँ पे छुट्टी हो गई, तो आप देखोगे जब फिर स्कूल खुलेगा, रीओपन होगा, तो आप आओगे देखोगे कि ये जो समर हॉलीडे है वो लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि वहाँ कोई डिस्टर्बेंस तो है नहीं, वो पूरा का पूरा लिखा रहेगा। और डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसको डस्टर से इरेज करोगे, व्हेन यू इरेज विद द डस्टर से जब आप यूज करोगे, इसको इरेज करोगे, तो आप देखोगे कि ऐसे कुछ वो दिखेगा, क्योंकि इजीली वो जल्दी से इरेज नहीं होगा, कुछ ट्रेसेस उसके वहाँ पे चिपके हुए मिलेंगे। क्यों चिपके हुए मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि लॉन्ग टाइम प्रोसेस में, लॉन्ग टाइम टेकन में, वो पार्टिकल्स गैस, ये पार्टिकल्स ऑफ चाक एंड पार्टिकल्स ऑफ ब्लैक बोर्ड्स, वो क्या होते हैं, वो इंटर मिक्सड हो गए हैं, तो ये आपस में मिल गए हैं, इसलिए वहाँ पे डाइफ्यूजन हुआ है। इसलिए हम देखते हैं कि कुछ पार्टिकल उसके ट्रेसेस बचे हुए मिल जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव अंडरस्टूड बाय दिस वीडियो कि सेल मेम्ब्रेन, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द थ्योरी ऑफ द सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल एंड द terms associated with the cell. We will discuss some certain organelle system function in later video.